हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे सिंगल सर्किट एंड डबल सर्किट. द ऑर्गेनिज्म विच हैव टू चैम्बर्ड हार्ट हैव सिंगल सर्किट इन विच ब्लड पास one time through the heart during a complete cycle. But in double circuit, the organisms which have four chambered heart in which blood pass two times through the heart during a complete cycle is called double circuit. डबल सर्किट में एक कौन सा पल्मोनरी सर्किट और दूसरा सिस्टेमिक सर्किट. आज अपन देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. Heart is mesodermal in origin. It is situated in thoracic cavity between the lungs, slightly on left side. Slightly on left side. It is a muscular and triangular. Muscular and triangular shaped structure. The upper broad part of heart is called base and lower or inferior pointed part is called apex. है ना? Superior broad part is called base and inferior pointed part is called apex. The wall of heart have three layers. Outermost pericardium, middle myocardium and innermost layer is called endocardium. Wall of heart consists with three layers. Outermost layer epicardium, middle layer myocardium, innermost layer endocardium. The myocardium is middle and thick layer of wall of stomach. It is consist with or made up of cardiac muscles, and cardiac muscles are structurally as treated muscles, but functionally they are involuntary. The heart is surrounded by double membrane called pericardium. The outer is called parietal pericardium, inner is called visceral pericardium. आउटर लेयर को कहेंगे पैरेटल पेरिकार्डियम, इनर लेयर को कहेंगे विसरल पेरिकार्डियम. इन बिटवीन द पैरेटल एंड विसरल पेरिकार्डियम द पेरिकार्डियल फ्लूइड इज फिल्ड विच मेक द फ्रिक्शन लेस मूवमेंट ऑफ हार्ट एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स एंड इंजरी. अब देखो अपन बात करते हैं. द ह्यूमन हार्ट इज फोर चैम्बर्ड. द broad part of heart have two atria and pointed और narrow part have two ventricles. तो अपन यहाँ पर एक एक पॉइंट को देखेंगे अपन. यहाँ पर
इसमें ब्लड का फ्लो भी देखेंगे अपन। The human heart, the left atria, right atria, superior vena cava, inferior vena cava, right ventricle, left ventricle, aorta, systemic arc, pulmonary arc, bicuspid और mitral valve, ट्राइकस्पिड वाल्व। हाँ, तो देखिए द एंटीरियर वाइड पार्ट ऑफ हार्ट हैव टू एट्रिया। Both the atria are separated to each other by interatrial septa, not inter. Both the atria are separated to each other by interatrial septa. During embryonic development, a minute pore or minute opening is present in interatrial septa called fossa ovalis. Foramen. Foramen oval, फोरामेन ओवेल, जिससे क्या होगा, दोनों एट्रिया का ब्लड मिक्स होगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ द फोरामेन ओवेल इज क्लोज्ड एंड ए डिप्रेशन इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ फोरामेन ओवेलिस इज कॉल्ड फोसा ओवेलिस। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो इंटर एट्रियल सेप्टा है उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो ओपनिंग है क्या कहेंगे उसको, फोरामेन ओवेल, और बर्थ के टाइम पर ये फाइबर्स के थ्रू क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक डिप्रेशन रह जाता है या इसका रिमेंट्स रह जाता है जिसको अपन बोलते हैं फोसा ओवेलिस। नेक्स्ट, अब देखिए फ्रॉग में तो क्या स्थिति होती है कि फ्रॉग में आप देखोगे 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो यहाँ पर हार्ट पर देखो एक ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर इज लोकेटेड ऑन द हार्ट इन विच द inferior vena cava and both superior vena cava are opens into this triangular bag like structure called sinus venous, and sinus venous is opens into right atria, but in human the sinus venous is absent, so that the superior vena cava
single superior vena cava and single inferior vena cava are directly opens into right atria. तो इसका मतलब जो right atria है इसमें सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा डायरेक्टली ओपन हो रही है, ठीक है. द कोरोनरी साइनस विच कलेक्ट द वॉल ऑफ ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट, और वी कैन से दैट द कोरोनरी साइनस विच कलेक्ट्स द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट इज ऑल्सो ओपन्स इनटू वॉल राइट एट्रिया. तो राइट एट्रिया में 3 ओपनिंग होगी, एक तो सुपीरियर वेना केवा, दूसरी इंफीरियर वेना केवा और तीसरी कोरोनरी साइनस. ऑल दीज ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय वाल्व्स. यहाँ पर जो सुपीरियर वेना केवा है वहाँ पर होगा हेवरिसियन वाल्व, इंफीरियर वेना केवा पर यूस्टेकियन वाल्व और कोरोनरी साइनस पर थिबेसियन वाल्व. इसका मतलब ऑल द ओपनिंग्स ऑफ राइट एट्रिया आर गार्डेड बाय वाल्व्स. जहाँ पर सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होगी कौन सा वाल्व होगा, हेवरिसियन वाल्व. इंफीरियर वेना केवा पर यूस्टेकियन वाल्व, कोरोनरी साइनस पर थिबेसियन वाल्व है. इसका मतलब हमारी बॉडी का पूरा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इवन हार्ट का भी, हार्ट की वॉल का भी, वो सारा का सारा कहाँ आ जाता है, राइट एट्रिया में आ जाता है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर इस तरह से जो पल्मोनरी वेन है, pulmonary veins from heart carry oxygenated blood from lungs are directly opens into left atria. इसका मतलब हमारे लंग्स का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू डायरेक्ट कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रिया में आता है. और बॉडी का पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आता है, राइट एट्रिया के अंदर आता है, ठीक है. इसके बाद बताएंगे द पोस्टीरियर और inferior pointed part of heart have 2 ventricles. 2 ventricles and the 2 ventricles are separated by interventricular septa. They are separated by interventricular septa. Next, the wall of ventricles. Wall of are thick than the wall of atria. Wall of ventricles are thick than the wall of atria, and the wall of left ventricle is much thick than the wall of right ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो राइट वेंट्रिकल से भी क्या है, थिक होती है. अब यहाँ पर देखिए both the atria are opens into ventricle of his own side through atrioventricular opening. Atrioventricular opening, यानी दोनों जो एट्रिया हैं वो दोनों एट्रिया अपने अपने और के वेंट्रिकल में खुलते हैं. किसके थ्रू, एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग के थ्रू. तो यहां पर अपन देखते हैं कि द एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग आर ऑल्सो गार्डेड बाई वाल्व्स. तो यहां पर अपन देखेंगे द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर opening is guarded by bicuspid और mitral valve. लेफ्ट साइड में कौन सा होगा, bicuspid flap, bicuspid valve और mitral valve.
and the right atrioventricular opening is guarded by 3 flaps और ट्राइकस्पिड वाल्व है। तो देखिए राइट साइड में तो कौन सा है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, लेफ्ट साइड में कौन सा है, बाइकस्पिड वाल्व। द वॉल ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और द वॉल ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व आर कनेक्टेड विद papillary muscles present in the wall of ventricles through कॉर्ड टेंडेनी। यहां पर देखिए यह है कॉर्ड टेंडेनी, यानी ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के जो फ्लैप है, जो वॉल है, वो कॉर्ड टेंडेनी फाइबर्स के थ्रू किससे जुड़ी हुई है, पेपिलरी मसल से। एंड पेपिलरी मसल्स आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। द कॉर्ड टेंडेनी का फंक्शन है वो क्या है कि ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को इन्वर्ट होने से रोकते हैं। दे प्रिवेंट्स देम फ्रॉम इन्वर्टेड। इन्वर्ट इसका मतलब एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल्स में तो आ सकता है, लेकिन वेंट्रिकल का ब्लड एट्रिया में नहीं जा पाएगा। इसको प्रिवेंट होने से कौन रोकता है, कॉर्ड टेंडेनी एंड पेपिलरी मसल्स। अब अपन देखते हैं, देखो जो राइट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के अपर और लेफ्ट साइड से, अपर और लेफ्ट साइड से निकल रहा है पल्मोनरी आर्क, और लेफ्ट एट्रिया के अपर राइट पार्ट से निकल रहा है सिस्टेमिक आर्क। It means systemic arc is arises from upper and right part of left atria, and pulmonary arc is arises from upper and left part of right atria. Each arc have 3 semilunar valve. Each arc have 3 semilunar valve which prevents the backward flow of blood। जो ब्लड को इन आर्क्स में तो फ्लो होने देंगे, लेकिन इसके बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पल्मोनरी आर्क है, पल्मोनरी आर्क तो राइट एट्रिया का जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है, उस डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ पे ले जाएगा, लंग्स के अंदर। और जो सिस्टेमिक आर्क है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स का, सॉरी यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स का जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है, देखिए राइट वेंट्रिकल का डिऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्क के थ्रू जाएगा लंग्स में। और इधर अपन देखते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिस्टेमिक आर्क, आउटा और आर्टरीज के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब अपन देखते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट कि हार्ट में हार्ट बीट किस प्रकार से जनरेट होती है, किस प्रकार से जो इनकी रिदम मेंटेन रहती है, उसके लिए हार्ट के वॉल में एक स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू है। द स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड नोडल टिश्यू। तो नोडल टिश्यू के कौन कौन से पार्ट हैं अभी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं
conducting tissue of heart. यहाँ पर देखो, ये है लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। तो देखिए, ए स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू which acts as nervous but muscular tissue is present in wall of heart called नोडल टिश्यू। इसको अपन क्या कहेंगे? नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एवरी पार्ट ऑफ नोडल टिश्यू कैन जनरेट नर्व इम्पल्स विदाउट एनी स्टिमुली। तो इनके पास देखें, ए मस्कुलर मॉस इज लोकेटेड ऑन लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ right atria. Upper left part of right atria is called SA node. Sinoatrial node. The sinoatrial node can generate nerve impulses at the rate of 70 to 75 beat per minute, and it also maintains rhythm of contraction and relaxation of heart. इनके रिदम को मेंटेन करता है, so that the sinoatrial node or SA node is also called pacemaker of the heart. तो यहाँ पर देखिए, एक मस्कुलर मास जो राइट एट्रिया के अपर और लेफ्ट पार्ट पर है, क्या कहा इसको अपन ने? SA नोड, जो केवल 70 टू 75 बीट पर मिनट जनरेट करने में कैपेबल है और इन जो कार्डिक रिदम को मेंटेन करने का काम भी करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेसमेकर बोलते हैं। ए अदर मस्कुलर मास इज लोकेटेड ऑन लोअर left part of right ventricle near atrioventricular septa. Called AV node, called AV node, SA node and AV node. Atrioventricular node, ठीक है। A bundle of muscle fiber is arises from AV node and it branch called atrioventricular bundle
इसको क्या कहेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। It is divided into two branches, right and left, atrioventricular branch, and each branch form a network of muscle fibers in wall of ventricle. They are called Purkinje fibers. The Purkinje fibers along with right and left branches called bundle of His. It is called bundle of His. तो देखें, the AV node also can generate the nerve impulses, but at the rate of about 40 beat per minute. इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं every part of nodal tissue can generate the heartbeat. तो यहाँ पर जो कंडक्टिंग टिश्यू है उसको अपन ने कहा नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू के कौन से पार्ट हो गए? SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर्स। तो अब देखें अपन कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की जो वेव है कहाँ से स्टार्ट हो गई? राइट एट्रिया में। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्शन होगा किस में होगा? राइट एट्रिया में। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट, सबसे पहले कहाँ पर? राइट एट्रिया में। उसके बाद लेफ्ट एट्रिया में, और उसके बाद दोनों वेंट्रिकल्स में क्या होगा? एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर देखें ऐसे नोड के पार्ट, सॉरी नोडल टिश्यू के पार्ट हो गए ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर, और इनके कॉन्ट्रैक्शन का जो अरेंजमेंट करेगा सबसे पहले राइट एट्रिया, उसके बाद में लेफ्ट एट्रिया, और उसके बाद दोनों वेंट्रिकल्स में क्या होगा? एक साथ होगा। ठीक है। इसके बाद यह था कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर अपन देखा एक तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू। तीसरी अपन बात करेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में अपन देखते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या है? हार्ट में कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन हो रहे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शंस है उन कॉन्ट्रैक्शंस को बोलते हैं सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब अपन देखते हैं, देखो सिंगल सिस्टोल प्लस सिंगल डायस्टोल, सिंगल सिस्टोल प्लस सिंगल डायस्टोल क्या हुआ? सिंगल बीट। एंड हार्ट बीट पर मिनट is called heart rate. In human, heart rate is about 72 beat पर मिनट। तो यहाँ पर देखो हार्ट में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल, रिलैक्सेशन डायस्टोल, सिंगल सिस्टोल और सिंगल डायस्टोल मीन्स सिंगल बीट, और पर मिनट जो बीट है उसको अपन क्या कहेंगे? हार्ट रेट। इन ह्यूमन द हार्ट रेट इज अबाउट 72 बीट पर मिनट। अब देखिए द चेंजेस और कार्डियक इवेंट्स फ्रॉम
beginning of a beat to beginning of next beat are called कार्डियक साइकिल। हार्ट में एक बीट के शुरू होने से लेकर नेक्स्ट बीट के शुरू होने तक जो भी चेंजेज होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल कहेंगे। और कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या होगा, 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल क्या होगा, 0.8 सेकेंड का टाइम लगेगा, जिसमें क्या होगा, एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल। यानी इसमें भी हार्ट में दो पंप एक साथ कार्य करते हैं। एक तो क्या होगा, एट्रियल साइकिल, और दूसरा क्या होगा, वेंट्रिकुलर साइकिल। एट्रियल साइकिल में एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल, इसी तरह से वेंट्रिकुलर साइकिल में वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब अपन ये देखेंगे कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान हार्ट में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, एट्रियल डायस्टोल में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या चेंज हो रहे हैं, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या चेंज हो रहे हैं। तो इनमें क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। और देखिए, एट्रियल साइकिल 0.8 सेकंड में, वेंट्रिकुलर साइकिल 0.8 सेकंड में, और दोनों भी क्या हो रहे हैं, 0.8 सेकंड में हो रहे हैं। यानी एट्रियल साइकिल और वेंट्रिकुलर साइकिल दोनों की जो इवेंट्स है वो एक दूसरे में ओवरलैप करते हुए जो इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये जो कार्डियक साइकिल में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, कितना ब्लड वेंट्रिकल रिसीव करते हैं, कितना पंप करते हैं, कितना इनके अंदर रह जाता है, और क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, कब हार्ट की साउंड, कौन सी साउंड किस कारण से उत्पन्न हो रही है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।